handle work and home together, being a working woman? This is a very nice question by a woman to a woman, because difficult है दोनों चीज़ों को मैनेज करना, बिकॉज अपना 100% हर जगह देना पड़ता है एज अ हाउस वाइफ प्लस एज अ वर्किंग वूमेन. यू हैव टू गिव योर 100%, बिकॉज इन दोनों को अगर आप एक साथ नहीं लेके चलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी. आइदर यू, इफ़ यू आर नॉट अ गुड वुमेन एट योर होम, तो वो लोग आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे टू बिकम अ वर्किंग वुमेन. And if you are not giving your 100% to your workplace, and you are not giving your 100%, then they are having the problems in the office line also. So it's difficult. But if a woman, एक औरत अगर ठान लेती है कि उसको ये करना है, तो वो ज़रूर करके रहती है. तो वो इस डिफ़िकल्ट वर्ड उसके लिए बहुत एक छोटा सा है. सो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन बाय यू. That's really inspiring. Thank you. So now, if I say that you will be given a choice once in a lifetime, or if hypothetically I give you a choice, that would you prefer or would you choose being only a working woman and not a housewife, or only a housewife and not working woman, what would you choose? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन अ वुमेन्स लाइफ, एक औरत की ज़िंदगी में हर स्टेप वी हैव टू गो थ्रू दैट, और सबकी एक एक जगह है. एज अ फैमिली वुमेन वो भी होना ज़रूरी है. एज अ वर्किंग, दैट इज़ एन ऑप्शन टू अ गर्ल, दैट इज़ एन ऑप्शन टू अ गर्ल. वो एक ही केस में होता है. इफ़ यू आर अ सर्वाइवर, लाइक आपको ज़रूरी है एज अ वर्किंग वुमेन बनना, तो आप बनते हैं. इफ़ यू हैव अ नीड, तो आप बनते हैं. बट इन माई लाइफ आई हैव लिव्ड both the life as a housewife also as a working, but I prefer, I am comfortable with the working woman, because इस वर्किंग वुमेन से मैं खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हुई हूँ. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है एज अ हाउसवाइफ ऑल्सो एज अ वर्किंग वुमेन. सो आई विल प्रेफर टू बी अ वर्किंग वुमेन. Okay. So, as you said that you would prefer being a working woman, and if there is a need, you have a choice of being a working woman other than a housewife. So, what do you think that only because of needs, financial dependence, or anything else, the women are coming out of houses and doing work, or should they do this on their own too, that they should have a personality, a life of their own, despite of their house, despite of their marriage, despite of their children's? So according to you, is it only that need and financial conditions are only there that women are working outside, or there can be other reasons too? In that case, from I'm talking about this generation, because you know that this generation is very fast, and today's women are, today girls are very pre-prepared about their career and all. So in the last generation, I'm talking about myself. In that generation, there's lack of education also. There's lack of many things. Besides that, women have to choose to go out for working. But nowadays the girls are well prepared and well career prepared, that they have to do everything on their own. So that's why I'm talking about that. It's very essential, or it's very good to be a self-dependent. Nowadays this is not a need, I think so, but this is a self-confidence of the girls and the women. Yeah, it improves the self-confidence Yeah. of a woman Mm. if she's working, Yeah. despite of any need, Yeah. despite of any Exactly. financial independence. She's doing work outside, that means she's boosting her own personality. Definitely, definitely. And working outside. So as mama said that working woman doesn't mean that you are doing it for needs or any financial conditions. You can do it for yourself too, because other than being a wife, other than being a mother, you are a woman, and you have to take control of your life in your hands too. ज़्यादा जॉब की डिटेल नहीं बतानी आपको.
ऊपरी बात करनी है, अपनी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स नहीं अपन को देनी उसमें, ठीक है? करके दिखाना पड़ा ना मैंने। हाँ, नहीं वो बता दो बस कि हाँ करना पड़ता है। मेरे पे बहुत एग्जांपल्स है खुद की लाइफ के कि मेरे को मेन से इक्वल ट्रीट करना पड़ा, उनके जितना काम करना पड़ा, व्हेन देयर वाज नो नीड टू, मेरे को ये सब प्रूफ करना पड़ा। फिर मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगी कि मैंने लाइफ में बहुत सैक्रिफाइस का क्वेश्चन, सैक्रिफाइस का ये कि भी मैंने पूछती हूँ मैं। So Dadi, being a single mother and losing your husband on the age of 25, that is too young first of all, और खुद के बच्चे को 25 की एज से पालना, ऑन द प्रेशर आपने उस समय काम करना चालू किया। सो डू यू थिंक उस पीयर प्रेशर में उस समय के जो आप सिंगल मदर थी, आपको वर्क फील्ड में ऑब्वियसली उतरना ही पड़ा टू हैव अ गुड लाइफ फॉर योर चाइल्ड, आपको क्या किसी पॉइंट पे ये फील हुआ दैट देयर इज अ प्रेशर, आपके ऊपर एक प्रेशर दबाव है कि आपको सोसाइटी में मेन के इक्वल आना पड़ेगा, तभी आपको उधर आपको देख पाएंगे लोग, तभी आपको कोई काम दे पाएगा, अगर आपको मेन के इक्वल आके काम करना पड़ेगा? तो क्या आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर उस समय पे जनरेशन पे था कि आपको मेन के इक्वल आना पड़ रहा है वर्क फील्ड में? हाँ बेटा, आना पड़ा मुझे वर्क फील्ड में, नेचुरल, सही बात है ये, क्योंकि मुझे उनके बराबर, उनसे ज़्यादा काम करके बताना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत उनके जितना तो करने वाले बहुत लोग मिल जाते थे, और मुझे नीड थी, मुझे बच्चे को पालना था, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, हर चीज़ की आवश्यकता थी। और फिर मैं अपने आप को कमज़ोर ना समझ के कि मैं ये कर सकते हैं तो क्या इनसे दुगना मैं काम कर सकती हूँ, और वो मैंने करके दिखाया, और मैं उसमें सक्सेस भी हुई। और फिर 80 डेज तक मैंने उसमें बैंकों में भी जॉब किया, मैंने मतलब हार नहीं मानी, जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, खूब अपनी तरफ से कोशिश करी। ये तो ठीक है, लक है, कोई बात नहीं, जितना मेरा समय था उस समय मैंने काम किया। फिर उसके बाद में मेरे कॉलेज लाइफ में, एजुकेशन लाइफ में मैंने जॉब किया, 30 साल तक मैंने जॉब किया एजुकेशन लाइफ। मैं बहुत हैप्पी, खूब बच्चे को भी अच्छे से पढ़ा लिखा पाई एजुकेशन लाइफ में जा कर के, और बच्चे को भी अच्छी एजुकेशन दे पाई, और आज मैं बहुत खुश हूँ, अपने पोता पोती, बहू, बेटा बहू, सबसे बहुत खुश हूँ। क्वेश्चन टू यू इज कि हर एक औरत के यही सवाल क्यों होता है कि वो सैक्रिफाइस हमेशा वुमेन का ज़्यादा पलड़ा भारी रहता है रेदर देन मेन। आई डू एग्री कि मैन अपनी जगह सैक्रिफाइसिंग, उनकी लाइफ बहुत सैक्रिफाइसेस वो भी करते हैं फैमिली में ग्रोन होने में, बट वाई डू वुमेन सैक्रिफाइस मोर इन द सोसाइटी और इन हर ओन लाइफ, अपनी लाइफ में भी? ये सही है, करना पड़ता है, अपनी ओन लाइफ में भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, किसी जगह, कहीं जगह थोड़ा सा चुप भी रहना पड़ता है, कहीं बोलने की आवश्यकता होती है तो हम बोलते भी हैं, ऐसा नहीं अपना प्रश्न रखना पड़ता है। तो कई जगह ऐसी होती है कि वहाँ चुप रह करके भी सब कुछ सही हो जाता है। आपके हिसाब से पहले की जनरेशन में, आपके जनरेशन में, आपसे अगर सीधा सीधा एक सवाल पूछा जाए, डू यू फील वुमेन एंड मेन वर ट्रीटेड इक्वली, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या वो इक्वल ट्रीट हो रहे थे? इक्वल तो नहीं, थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है। और क्या आज की जनरेशन में मैन और वुमेन इक्वल ट्रीट हो रहे हैं? बिल्कुल, मैन इक्वल ट्रीट हो रहे हैं और वुमेन भी इक्वल ट्रीट हो रहे हैं। बिल्कुल। देन व्हाई देयर आर केसेस दादी जिसमें वुमेन की लाइफ सैक्रिफाइस हो रही है, औरतें अपनी बेटियों को खो रही हैं, अभी भी जो क्राइम केसेस हैं वो वुमेन की तरफ ही क्यों हैं, और मेन का रेशियो इतना कम क्यों है? डेली देयर आर केसेस, रोज के रोज केसेस मिलते हैं। तो क्या अगर हम अपने दिल से वापस से पूछें कि हमें जॉब में हमारे को बस में रिजर्वेशंस दे देना, हमको एग्जाम्स में रिजर्वेशंस दे देना, हमको वर्क फील्ड में जॉब रेशियो में रिजर्वेशंस दे देना, क्या रिजर्वेशन और लीगल काम ही इक्वल ट्रीट करना है, या फिर दिल से भाव से औरत को वो दर्जा अब देना इक्वल ट्रीट करना है? दिल से करे
आदमी equal। हमेशा दिल से औरत की कदर करेगा तो इक्वल माना जाएगा। वैसे गवर्नमेंट ने तो हमको बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ दे रखा है, सब बराबर से सबको बराबर सम्मान दिया हुआ है। औरत को भी वही सम्मान है, आदमी को भी वही सम्मान है। ऐसा कुछ नहीं है लड़का लड़की को कोई भेदभाव नहीं है, सब इक्वल है। तो क्या सोसाइटी इस चीज में सफलता पा पाई है कि वो इक्वल ट्रीट करे वुमेन और मैन को? समाज तो देखो, समाज कैसे बनता है, 4-5 आदमी मिलकर के जो होते हैं ना, यही समाज बनाते हैं। आदमी औरत बच्चा बच्ची सब ये समाज ही है। जहाँ 8-10 लोग हो गए, ये सब मिलकर के समाज है। समाज आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझे कि ये इसमें हमारी बच्चियां भी हैं, उनकी बच्चियां नहीं हमारी बच्चियां हैं। ये सब बच्चियों को, यहाँ बच्चों को सबको इक्वल समझे, बराबर दर्जा दे तो सफलता हासिल है। और सरकार हमेशा हमको हर चीज प्रोवाइड करती है, हर चीज। पर सोसाइटी कहीं हद तक वही बात है कि सोसाइटी में अगर 10 लोग आपके समाज में बोल रहे होंगे कि वुमेन आर ट्रीटेड राइट, तो 10 नहीं भी बोल 10 रहे नहीं भी होंगे, बोलेंगे, 10 कर भी बिल्कुल। नहीं रहे होंगे हाँ। ट्रीट राइट। तो दादी आपको क्या लगता है कि, वही मेरा क्वेश्चन, कि आपको क्या लगता है कि सोसाइटी ये कभी कर भी पाएगी कि अपने मानसिकता से वुमेन को वो दर्जा दे पाए जो देना चाहती है या देना चाहिए? देना चाहिए, मानसिकता से उनको सोचना चाहिए। हर वुमेन को सोचना चाहिए कि इन बच्चियों को, इन औरतों को, सबको सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। और जैसे इज्जत वुमेन को आदमी को मिलती है, वैसे औरतों को भी दी जाए। इनका भी है अधिकार जीने का। क्योंकि अगर आज भी देखें तो इक्वालिटी तब देखी जाती है ना दादी। अब गवर्नमेंट ने हमें रिजर्वेशन दे दिए, सब दे दिए, गवर्नमेंट अपनी जगह अपना काम कर रही है इक्वल ट्रीट करने में। रही बात, क्या आज आप अपने पोते को बाहर 10 बजे भेज रही हो, वहीं आप अपनी पोती को बाहर 10 बजे भेज रही हो, आप कंफर्टेबल अभी भी किसको नहीं होगी? लड़की को बाहर लड़की के बाहर भेजने में। हाँ, ये जब तक चेंज नहीं हो जाता तब तक सोसाइटी ये नहीं कर पाई कि वो दोनों को इक्वल ट्रीट कर रही हो। इक्वल ट्रीट करना इस सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, बाहरी दुनिया में एनवायरनमेंट तो safe हम लोगों से feeling बनेगा देना। ना। हम लोग ही तो एनवायरनमेंट खराब करेंगे और हम ही लोग सुधारेंगे। अगर हमारे मन में भाव अच्छा नहीं है तो फिर कहाँ से एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा? आप छोड़ के तो देखो, बच्चा बच्ची को देखो तो सही। आप अपना मन अच्छा रखो, देखो अच्छा है, और बच्चा आपको 100% करके देगा। लास्टली मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि आप यंग गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहोगी कि उनको अपनी लाइफ और वुमेन पर्सपेक्टिव को लेके आगे कैसे बढ़ना चाहिए? मैं ये बोलूंगी बच्चों को कि आप लोग अच्छी तरह बेटा पढ़ाई लिखाई करो, सब कुछ करो, हैं, हर चीज में, हर फील्ड में जाओ, गेम्स में क्या, हर जगह नौकरियों में जाओ, गवर्नमेंट जॉब में जाओ, प्राइवेट जॉब में जाओ, जहां आपको मिलती है जाओ, आप सक्सेस होगे। लेकिन अब सच्चाई और ईमानदारी ये आपको उत्तर देगी। आप कहीं पछेड़ नहीं सकते हो। आप अपनी लाइफ में हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलो, भगवान आपकी हमेशा मदद करेगा। थैंक यू दादी। ओके बेटा।